Hello, Assalamu alaikum, everyone. Good afternoon. This is Asad Ali, and you're watching Syed Fazil Shah Bukhari's YouTube channel. So this is going to be our first lecture on international relations and globalization. So as you know already that I talked about the outline of international relations part 1 in much detail in my first lecture. And in today's lecture, I'm going to talk about another topic, and that is the globalization and international relations. So let's talk about what is international relations and how globalization impacts on international relations right now. So here, dear viewers, you can see here, this map is of North America. You can see here United States of America, Canada, Mexico, Alaska, Greenland, Russia, some parts of Russia, Iceland. You see there are a lot of countries in North America. It's quite clear to you. Similarly, you see a lot of countries in South America as well. This is South America. You can see here Brazil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Argentina. Once again, you'll find a lot of countries here in South America as well. Similarly, you have got examples from Europe, from Africa, and from Asia as well. So you see here, these are the countries. Once again, a lot of countries. Ethiopia, Sudan. Basically, this is African continent. We call it as a black continent. And this one is Europe, obviously. If you have studied European history, you can see United Kingdom, Germany, English Channel from here, a lot of countries once again. And then finally, Asia, Pakistan, Afghanistan, China, Mongolia, Kazakhstan, Central Asian states, bigger Russia. Once again, a lot of countries. So now the question is that how these countries interact with each other. That's the basic topic or dimension of international relations. That is a basic paradigm of international relations that says international relations. It means there are some sort of relations between nations. You see, there are a lot of nations, states and nations. We'll talk about what is called state and nation. How will you define state and nation? We'll talk about this in much detail in our separate lecture. But now the question is here that the international relations means relations between the states. So see, here in our definition, you see international relations, the relationship among the world state governments. So you see that a lot of countries are here in the world map, and all these countries, they have some of the domestic governments, may it be authoritarian, democracy, republican, any other form of government. So basically, they have interaction between each other. So just see, this one is a state, and this has some sort of interaction with state B, and this has some sort of interaction with state C. Similarly, state E, and once again, E has relationship with A. Okay, so let's consider it as A. You see, they might have direct relationship or indirect relationship. You'll find a potato mash here. A lot of interactions are happening between states. So these are the interactions between world state governments and connection of those relationships with other actors. And then there is a relationship between world state governments, and there is also a connection of those relationship with other actors as well. You know, you find multinational corporations, big companies, McDonald's, KFC, Unilever, a lot of companies are there. You see and you see multinational companies and individuals in international relations. For example, Bill Gates, he has a kind of funding for polio in Pakistan. You see some other social relationships, including economic, cultural, and domestic politics, a lot of interactions with geographic and historical influences. So basically, there are not just two actors which are directly involved between each other, not just two actors that we call states, state A and B. There are some other elements as well, actors as well,
which are in this particular interaction. We'll say these are the state actors, sometimes non-state actors. We call it multinational corporations, pressure groups. A lot of stuff is going on in international relations. That's why we can criticize the particular terminology that we call international relations. International relations की जो terminology है वो हमें बता रही है कि शायद relationship सिर्फ nations के बीच में है. That is quite wrong. Actually जो interaction है वो global हो चुका है. So we will have to talk about globalization as well with international relations these days. Because you know कि सिर्फ स्टेट का आपस में इंटरेक्शन नहीं है. स्टेट का स्टेट से भी है, इंडिविजुअल से भी है, प्रेशर ग्रुप से भी है, नॉन स्टेट एक्टर्स, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, टेररिस्ट ग्रुप्स. A lot of interaction is happening once again, right? So you see here in the figure the word view, the international, the subnational, the regional. तो आप जब इस इंटरेक्शन को देखते हैं तो आपके पास जो है वो सेपरेट जो है वो पैराडाइम्स में एनालिसिस आएगी. वर्ड व्यू में आप इसको डिफरेंटली देख सकते हैं. इंटरनेशनल जो है एनालिसिस में डिफरेंट देख सकते हैं बिकॉज द इंटरेक्शन इज हैपनिंग बिटवीन स्टेट्स हियर. वर्ड व्यू में तो काफी इंटरेक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाता है. द रीजनल, जिसमें आप रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, सार्क है या जो है वो फॉर एग्जांपल जो है वो SCO है, ठीक है. सब नेशनल ग्रुप्स, अब ये डोमेस्टिक स्फीयर में भी आ जाता है. तो इट्स नॉट एन इजी टू डिफाइन इंटरनेशनल रिलेशंस, बट आपने ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है इसमें काफी जो है वो इंटरेक्शंस हो रहे हैं फ्रॉम इंडिविजुअल लेवल्स. स्टेट में देखा जाए, स्टेट गवर्नमेंट से देखें तो आप इंटरनेशनल लेवल तक काफी बड़ी कंपनीज है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. लिबरल जो इकोनॉमिक मॉडल है उसने पूरी दुनिया को चेंज करके रखा है. तो आई होप सो कि आपको ये डेफिनेशन बेसिक जो है वो क्लियर हो चुकी होगी. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस. Remember, we are talking about globalization of international relations, right? So we will talk about in this particular direction. अच्छा, तो हम कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक है बिकॉज इसमें जो है डिफरेंट लोग, डिफरेंट कल्चर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है. तो स्कोप जो है, जैसे आपका पहला टॉपिक CSS का है, स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. तो इसको अगर इस इंटरेक्शन को देखा जाए जिसमें हमने पहले बात की, तो इसका स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा वसी होने वाला है. दैट इज बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड दैट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड. तो हम कहेंगे कि दैट इज कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन among these group making international relations a challenging subjects to master. जब भी जो है ये बहुत ज्यादा एक चैलेंजिंग जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी. क्योंकि इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा हैं जैसे हमने बात की, तो इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है. तो हमने इसको नैरोली डिफाइंड किया. दिस इज द सेम डेफिनेशन जिसको हमने अभी नैरोली डिफाइंड किया कि इंटरनेशनल रिलेशंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं. जी, अच्छा. ग्लोबलाइजेशन में आप देखें तो रिसेंटली मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 3 बड़े एग्जांपल्स मिलते हैं, ठीक है. इससे साबित होता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत पावरफुल फिनोमेना है. वैसे एग्जांपल्स तो बहुत मिलते हैं आपको सिंस हाइपर ग्लोबलाइजेशन 1965 से इन हिस्ट्री वी नो के हाइपर ग्लोबलाइजेशन शुरू हो जाती है, ठीक है. That is the exchange of ideas, exchange of industries, exchange of science and technology, a lot of exchange of goods and services, ठीक है. तो दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज जैसी बन गई है, इंटरकनेक्टेड हो गई बिकॉज ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जिसमें आइडियाज आपके बहुत ज्यादा जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं. आपकी जो है वो एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी जो है वो बन रही है, ठीक है. दैट्स बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. आप देखें कि फूड चेन्स आपके मुल्क में आते हैं, पिज्जा, बर्गर और लॉट ऑफ जो है वो स्टफ्स इंटरनेशनल आपको नजर आता है मॉल्स में. तो दैट इज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और इसी पे ही हम बात करेंगे. तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है वो मेंशन्ड है आपके बुक में और हम इस पे एनालिसिस करेंगे कि हाउ ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली मैटर्स फॉर ऑल ऑफ अस. जैसे 2014 में, इन 2014 आपको पता है कि एक इबोला जो है वो आउटब्रेक हुआ था और दिसंबर 2019 में आपको पता है कि इससे बड़ा एग्जांपल जो है वो ग्लोबल पैंडेमिक
कोरोना वायरस COVID-19 जो है वो दुनिया में आया था। उससे आपको आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि जो है वो ग्लोबल जो है वो बिल्कुल सिस्टम जो है ग्लोबलाइजेशन का वो बिल्कुल हॉल्ट हो चुका था। प्लान्स जो है वो नहीं जा रहे थे कंट्रीज में, कंप्लीट लॉकडाउन हो गया था और ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में जाने लगी। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ जाने लगी बिकॉज ऑफ द लेस एक्टिविटीज ग्लोबली, एक्टिविटीज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो पैंडेमिक है वो स्टार्ट हुआ चाइना से, लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में पड़ा। सो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपका एक और बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पे आपको मिलता है, अरब स्प्रिंग आप कहते हैं इसको। ठीक है, 2011 और 20 में तुनिसिया एक मुल्क है जो है वो अरब, वहाँ पे एक जो सब्जी फरोश है वेंडोर, वेजिटेबल वेंडोर, उसने खुद को आग लगा दी थी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, और उससे जो है रिपल इफेक्ट शुरू हुआ पूरी दुनिया में बिकॉज ऑफ ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो वो जो है कोऑर्डिनेटेड रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया पूरे जो है वो आपके मिडिल ईस्ट में। तो you see a lot of turmoil after 2012 after this revolutions, जिसे आप अरब रिवॉल्ट भी कहते हैं और अरब स्प्रिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज द इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है पूरी दुनिया पे। हमें बाद में चलता है, पता चलता है प्रॉक्सी वॉर, सीरिया, यमन जो क्राइसिस शुरू होते हैं, लिबिया में, ये जो है सारे कोऑर्डिनेटेड जो है वो रेवोल्यूशन शुरू होती है। इसमें सेपरेटिस्ट ग्रुप्स आते हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन यू सॉ दैट के एक बड़ा रिपल इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है एक मुल्क में अगर कोई चीज होती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन वंस अगेन। तो इफ यू नो अबाउट दिस के ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन जो है वो एक्चुअली 2008 और 9 में आई थी, जिसमें US का जो बैंकिंग सेक्टर है वो कोलैप्स कर गया था, और इसका भी एक पूरी दुनिया पे रिपल इफेक्ट हुआ। और हमने देखा कि जो है बाद में पूरा जो ग्लोबल GDP है वो कम हुई, और जो गरीब मुल्क थे, डेवलपिंग कंट्रीज थी, अंडर डेवलप्ड, उन पे बड़ा जो है वो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ा है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक गुरुज, वो कहते हैं कि अभी तक जो है वो शॉक्स जो है, आफ्टर शॉक्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन ऑफ 2008 एंड 9, वो अभी तक जो है वो फील होते हैं। तो these were 3 examples जिससे हमें पता लगता है कि ग्लोबलाइजेशन इज रियल एंड इट्स हैपनिंग एंड इट इम्पैक्ट्स ऑन ईच ऑफ अस। जी, तो आप देखें कि ईज ऑफ कम्युनिकेशन दुनिया में हो चुका है। ICT की मैंने बात की, ICT दैट इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, मार्केट्स बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गई हैं। इसका एग्जांपल आप ले लें कि हांगकांग में आपका जो है वो सिलिकॉन चिप्स बनती हैं, आपकी चिप्स वो खाने वाली नहीं, दीज आर दी इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, वो हांगकांग में बनती हैं। तो पूरी दुनिया को सप्लाई होती है, IBM, डेल, जितनी भी कंपनीज हैं, अगर वो बनाना ख़त्म कर दें ये चिप्स, तो आपके मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री और बाकी जो है मार्केट वो कोलैप्स कर जाए। तो मार्केट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो चुका है, और इसका इफेक्ट जो है वो हम सब पर पड़े। अगर हांगकांग में पॉलिटिकल क्राइसिस होंगे तो डेफिनेटली जो प्राइजेस होंगी मोबाइल फोन्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंप्यूटर सिस्टम्स की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऑलराइट, तो अब जो प्रोस्पेक्ट है जॉब्स का, वो भी डिपेंड करता है ग्लोबल जो है वो इकोनॉमी पे। और जी, तो मतलब कि we can say that from electronics, clothing and gasoline, everything matters in international paradigms, जिसमें ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा। जी, this is the same thing, transportation capabilities, alright, तो एक आम सा बंदा है, उस पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, इंटरनेशनल रिलेशंस में या ग्लोबलाइजेशन में, ठीक है, लाजमी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो इम्पैक्ट करे, एक इंडिविजुअल सिटीजन जो है वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है दुनिया को। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल सिटीजन लाइक एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, या कोई व्लादिमीर पुतिन जैसा कोई जो है वो अथॉरिटेरियन लीडर हो और वो एक्शन ले। जैसे आप पता है कि वॉर चल रही है यूक्रेन में, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल जैसे प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो भी बहुत ज़्यादा
जो है वो मैटर करते हैं इन इंटरनेशनल रिलेशंस बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऑलराइट, तो मतलब कि इसमें आप देखें कि इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जो प्रेशर ग्रुप या पॉलिटिकल कैंपेन्स वोटिंग में जो है वो अपना राय जो है वो कंसेंट यूज करते हैं और एज अ रिजल्ट डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स बनती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स बनती हैं और वो जो गवर्नमेंट्स हैं पूरी दुनिया में फिर काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज से इंटरेक्ट करती हैं और उसका हमें डेली लाइफ में इम्पैक्ट नजर आता है। Alright, मैं कोशिश की कि इसको जो है वो समराइज किया जाए बिकॉज द शॉर्टेज ऑफ टाइम। देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस इन ग्लोबलाइजेशन। तो विदाउट फर्दर गोइंग इन डिटेल मैं आपसे पूछूंगा कि एक क्वेश्चन है आपसे कि एक कंट्री है ए, here you can see this is a country A and here's a country B, ठीक है। जैसे हमने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट, ये हमने मेन जो है वो पॉइंट डिस्कस किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया जाएगा कि भाई अगर ये कंट्रीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो क्या दे विल टॉक अबाउट देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट और कलेक्टिव इंटरेस्ट, ठीक है। तो हाउ कैन अ ग्रुप सच एज 2 or more countries serve its collective interest when doing so require its members to forgo their इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। अब हर मुल्क का जो है वो वेस्टफेलियन सिस्टम आपने सुना होगा कि हर मुल्क जो है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट सॉवरेन होता है, ठीक है। देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस टू रेगुलेट इट्स बिहेवियर। तो ये भी इंडिपेंडेंट है, बी भी इंडिपेंडेंट है। अब इन दोनों को आपस में इंटरेक्ट करना है, ठीक है। इनका भी नेशनल इंटरेस्ट है अपना, बी का भी नेशनल इंटरेस्ट है अपना। अब ये आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो क्या ये कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फॉरगो करेंगे, उसे छोड़ देंगे, या जो है ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज्यादा अहमियत देंगे, कलेक्टिव को नहीं देंगे। तो इससे एक क्राइसिस जो है वो शुरू हो जाते हैं जिसे आप जो है वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस पे हम बात करते हैं। इसे आप फ्री राइडिंग भी कह सकते हैं इन इंटरनेशनल रिलेशंस, बर्डन शेयरिंग भी कहते हैं, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स भी कहते हैं, प्रिजनर्स डायलेमा भी कहते हैं, ठीक है। या आप जनरल केस में से बोलते हैं कलेक्टिव इंटरेस्ट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ कलेक्टिव इंटरेस्ट, कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इंटरेक्शन तो होना है, यू नो दिस, ठीक है। बगैर इंटरेक्शन के तो इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं है। तो इस सेंट्रल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। इस पे आप यू टेक आउट योर कॉपीज एंड डू ब्रेनस्टॉर्मिंग के इस सिचुएशन में क्या चीज हेल्प करेगी कि कंट्रीज आपस में पीसफुली रहें, ठीक है। दे मस्ट सर्व देयर कलेक्टिव इंटरेस्ट रादर देन देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और कंट्रीज अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे बात करेंगी तो कलेक्टिव इंटरेस्ट का क्या होगा, व्हाट विल हैपन, व्हाई दिस वर्ल्ड इज इन टर्मोइल। अभी आप देखेंगे ये दुनिया जो है वो इट्स कॉन्स्टेंटली इन वॉर। ग्रीक से पहले देखें तो वॉर ही वॉर चलती आ रही है। वॉर पे भी डिस्कशन होगी हमारी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो दैट इज अ चैलेंज हियर, दैट इज अ बिग चैलेंज कि हम इस सिचुएशन में क्या करें। और यकीन जानिए कि अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। बट वी हैव सम फ्रेमवर्क्स, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स, इंटरनेशनल जो थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, उन्होंने कुछ जो है वो वे आउट निकाला है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, individual nations, then we call them core principles. So what are the core principles of international relations when states have interaction with it, ठीक है। तो core principles international relations के क्या हो सकते हैं। individual जो है वो nations यहाँ पे mentioned है कि वो अपने short term interest के लिए एक हमला भी कर सकते हैं किसी मुल्क पे, ठीक है। trade agreements में cheat भी कर सकते हैं और दे कैन रिफ्यूज टू कंट्रीब्यूट इन इंटरनेशनल एफर्ट्स। जैसे वैक्सीनेशन के जो है वो इश्यूज हैं या कैंपेन्स हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज की कैंपेन्स हैं। तो अगर ऐसा रहा तो दुनिया जो है वो बिल्कुल chaotic जो है वो बन जाएगी और म्यूचुअल कॉपरेशन इसका तो कॉन्सेप्ट ही दुनिया से खत्म हो जाएगा, जिससे सिक्योरिटी के इश्यूज होंगे और एक अनएंडिंग पावर स्ट्रगल जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये जो है that is a big issue.
अब इस इशू को कैसे सॉल्व करना है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। चलिए इसी पे बात करते हैं। तो हमने इसको कहा कि ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स है, दैट इज अ बर्डन शेयरिंग, दैट इज अ फ्री राइडिंग समहाउ। ठीक है, फ्री राइडिंग मतलब कि आप एक से बेनिफिट ले रहे हैं, कंट्री को रिटर्न में कुछ नहीं दे रहे। बर्डन शेयरिंग भी एक है कि कंट्री ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, दूसरी नहीं कर रही। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ये टर्म जो है आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे, बट सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे दैट्स आल्सो सेड कि कलेक्टिव गुड्स जो हैं या जो ये प्रॉब्लम है वो एक्चुअली ईजियर है सॉल्व करना जब स्मॉल ग्रुप्स में कंट्रीज इंटरेक्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ग्रुप ऑफ 4 to 5 कंट्रीज, तो उसमें जो चीटर है कोई भी मुल्क स्मॉल ग्रुप में, और द फ्री राइडिंग, उसका जो एक भी मेंबर अगर कोई मिस्टेक कर रहा है या कंप्लाई नहीं कर रहा है तो एक्चुअली वो पकड़ा जाएगा, वो जो है वो हिडन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका बड़ा एक जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है जब आपके पास छोटा सा ग्रुप होता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो आपस में कोऑपरेट कर रहे होते हैं या दे आर वर्किंग ऑन द सेम एजेंडा। ठीक है, और जैसे आप G20 जो है वो ग्रुप का एग्जांपल ले लें, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स, तो G20 ग्रुप में कोई भी कंट्री अगर चीट कर रही है एंड शी और ही इज टॉकिंग अबाउट कंट्री के हवाले से, तो अगर वो बात करें अपने पर्सनल इंटरेस्ट की, तो दैट विल नॉट बी एन ईजी फॉर दैट कंट्री टू हाइड their actions, right? तो मूव ऑन करते हैं लेस। ठीक है, अब कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम जो है वो तमाम सोसाइटीज में भी होती है, सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशंस में भी नहीं होती, डोमेस्टिक स्फीयर्स में भी होती है, आपके घर में भी होती है। बिकॉज सम ऑफ द स्कॉलर्स फिलोसफी में हम पढ़ते हैं कि क्वेश्चन रेज करते हैं कि आर वी बाय बर्थ ग्रीडी, आर वी बाय बर्थ एविल। हम कहते हैं कि नो, बाय बर्थ वी आर नॉट एविल, but that is a society which teaches us to act in certain ways. As a result, we are corrupted. तो ये भी जो है वो एक philosophical question जो है वो रेज किया जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी ऐसा है। ठीक है, आपको पहले बताया कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, नेशंस आर सॉवरेन, तो कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो इन्फोर्स कर सके। ठीक है, जैसे एक डोमेस्टिक गवर्नमेंट होती है, उसकी पुलिस होती है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है जो लॉज जो बनते हैं लेजिस्लेचर में उसे इन्फोर्स करवाती है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन के लिए जुडिशरी होती है, तो एक पूरा सिस्टम होता है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या होता है कि जो कंट्रीज हैं दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स देयर इंडिविजुअल सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्राइसिस शुरू होते हैं। अब आप किसी भी मुल्क में टैक्स भी पे करते हैं, और अगर हुकूमत बोले तो एंटी पॉल्यूशन इक्विपमेंट लगा दें इंडस्ट्री में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कह रही है आपको, आप सारी चीजें कंप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे तो आपको पनिश मिलेगी। बट इंटरनेशनल रिलेशंस में ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। दैट्स व्हाई इट्स हार्ड टू मैनेज दीज रिलेशनशिप्स बिटवीन द कंट्रीज, दैट्स व्हाई इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्टली बात करेंगे अबाउट दी core principles for solving collective goods problem. Collective goods problem आपको बहुत ही क्लियर हो चुकी होगी, उस पर हमने बात की, थोड़ा क्विक की बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, लेकिन आपको जो है वो पूरा इश्यू समझ में आ रहा है दुनिया का क्या है। ग्लोबल जो वर्ड है उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सेंट्रल या बहुत बेसिक जो इशू है वो क्या है। अच्छा, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है डोमिनेंस। फ्रॉम टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ से जहन में आ रहा होगा कि शायद कोई ऑपरेशन है या कोई बाय फोर्स कोई जो है वो काम करवाया जा रहा है। जैसे पुलिस जो है वो बाय फोर्स अगर पनिश करती है तो चोर डाकू जो है वो सच बोलते हैं। दैट इज ट्रू डोमिनेंस सिंपल टर्मिनोलॉजी में। रेसिप्रोसिटी, दैट इज रेसिप्रोकेट करते हैं आप बिहेवियर को, कोई आपको अच्छे से बात करता है, सलाम करता है, तो आप उसका रिप्लाई भी वैसे ही पोलाइटली देते हैं। अगर आपको कोई जो है वो बैड वर्ड से बुलाता है या हार्श होता है, रूड होता है, तो आपका रेस्पॉन्स भी वैसे आता है। तो for every positive reaction there is positive reaction in civil society. ठीक है, for every negative reaction you will get negative reaction in civil society. That's what we have socially constructed. ठीक है, तो reciprocity पे जो है वो आपकी दुनिया या आपके बेसिक जो है वो इंटरेक्शन चलते हैं। The last one is identity, that is आपकी शनाख्त। हम इसमें जो है वो बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि डोमिनेंस जो है वो ये कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। डोमिनेंस में ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो हमें नजर आती है। एंड इसके एडवांटेजेस हैं। ऑर्डर
इंटरनेशनल रिलेशंस में ये ऑर्डर लाता है, स्टेबिलिटी लाता है एंड प्रेडिक्टेबिलिटी लाता है, कि मतलब हमें पता लग जाता है कि सर्टेन कंट्रीज कैसे बिहेव करेंगे उसमें। ऑपरेशन एंड रिजेंटमेंट, दीज आर दी ड्रॉबैक्स ऑफ इट। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। डोमिनेंस क्या है, ठीक है, अ प्रिंसिपल फॉर सॉल्विंग कलेक्टिव गुड्स प्रॉब्लम बाय इंपोजिंग सॉल्यूशंस हायरार्किकली, ठीक है। हायरार्की में जो है डोमिनेंस क्या होता है कि हायरार्की में एक सिस्टमैटिक हायरार्की बनाई जाती है, जैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आप सोशियोलॉजी में पढ़ते होंगे, तो उसमें क्लास डिफरेंसेस बताते हैं कि भाई एक ट्रायंगल में बनाते हैं कि अपर क्लास जो है वो ये होती है, लोअर क्लास मिडिल क्लास जो है, तो ऐसे एक स्ट्रैटिफिकेशन में दिखाते हैं इसको, ठीक है, जिससे तबकाती निज़ाम क्लास सिस्टम होता है। तो हायरार्की में जैसे किंग क्वीन और उसके पीछे जो है वो नाइट्स होते थे, तो ब्रिटिश हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो हायरार्की में ये होता है कि स्टेट ए, स्टेट बी फॉर एग्जांपल, और स्टेट सी, माय गॉड, ठीक है। स्टेट ए एंड बी सी ये जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, और इसके अंडर जो है वो स्टेट 1 2 3 आती है, फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 3, ये 3 स्टेट्स इसमें आ जाती है। अब क्या होगा कि कोई भी जो है वो प्रॉब्लम होगी या स्टेट अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे 1 2 3, तो इनको डर होगा कि अगर हमने कोऑपरेट नहीं किया तो कोई ना कोई जो है वो क्या आएगा, प्रेशर आएगा हमारे ऊपर, ठीक है। अब प्रेशर आया तो वी विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग बिकॉज दे नो कि ये जो एबीसी है, दीज आर देयर लीडर्स, और इनकी जीडीपी और इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर हम कोऑपरेट करेंगे तो दैट्स इट, हमारा भी फायदा है, कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर ये 3 कंट्रीज एक्शन करें। तो जो प्रॉब्लम थी कलेक्टिव इंटरेस्ट की, जो है वो नेशनल इंटरेस्ट की, ये फॉरगो करते हैं एंड दे टॉक अबाउट कलेक्टिव इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आपके पास जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का आता है, यूनाइटेड जो है वो नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल का एग्जांपल जो है आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आता है।